Assalamualaikum students, I hope you're all doing well. This is Zenia welcoming you all to another video from STEM International और English book 6 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 8 हमने जो है वो पढ़ा और चैप्टर नंबर 8 में दी अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट क्या था. हमने उसमें से ये मैसेज भी देखा कि किस तरह से जो है वो एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ वाइब करने के लिए आपको एक ही तरह का होना इंपॉर्टेंट नहीं होता. सो देयर आर डिफरेंसेस और उसी की बेसिस के ऊपर अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं एंड यू नो द ड्रिल के हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी करेंगे और उसके बाद फिर विल डाइव इनटू दी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट्स ऑफ द एक्सरसाइज जो कि है वोकैबुलरी का पार्ट. तो उसमें क्या नया सीखने को मिल रहा है आइए देखते हैं. ऑलराइट गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. MCQs हैं हमारे पास और द पहला जो MCQ है दैट इज व्हाई वाज राजा सैड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. राजा स्टोरी के बिल्कुल शुरू में, कहानी के बिल्कुल शुरू में हमें अफसुर्दा या उदास क्यों दिख रहा है. He was hungry, he was ill, he had no friends या he was tired. That is जब हमने शुरू में पढ़ा कि राजा was thinking to himself कि he had no friends. So that is why the third option is the correct one. The second is who was Raja's caretaker? Was it Asim? Was it Fahim? Was he Zan or was he Suhail? So we have read about it कि राजा के caretaker का नाम जो उसकी देखभाल करता था उसका नाम था Zan. And therefore third one is the right option. What did Raja do when he saw the hungry dog? राजा ने क्या किया जब उसने एक भूखे डॉग को देखा. He ignored him, he chased him away, he shared his food या फिर he called Zan. तो what we have read is कि फ़ौरन उसने अपना खाना डॉग के आगे कर दिया था. So he shared his food and this is why the third option is the correct answer. Why did Raja stop eating after the dog left? राजा ने जैसे ही वो डॉग चला गया वापस तो फिर उसने खाना क्यों छोड़ दिया था. Was he sick? He was angry? He missed his friend? Or he disliked the food? तो हमने देखा कि जैन ने जैसे चेक भी किया तो there was nothing wrong with him but the sheer reason was कि he missed his friend. उसे अपना दोस्त जो था वो याद आ रहा था. So that is why the third one is the right option. And the last MCQ is who allowed the dog to return to Raja? Was it the caretaker? Was it the king? The farmer or the gardener? So what we have studied is कि वो dog actually में एक farmer का था. तो इसलिए the farmer था उसी ने एंड पे जाके जब उसको उदास देखा तो उसने उसकी रस्सी खोल दी और उससे कहा कि जाओ अपने दोस्त के पास. So therefore the farmer is the right answer for this particular MCQ. और इसी तरह से we have a few blanks ahead. Blanks देख लेते हैं. The first one is Raja the elephant lived in the best booth of the royal dash. तो वो कहाँ पे रह रहा था? In the royal stables. The second one is Zan was a dash who served Raja food and gave him a bath in the pond daily. Zan उसका क्या था? Elephant का क्या लगता था? He was the caretaker. So we're gonna write caretaker over here. And then one late evening a dash strayed into the stable. क्या पढ़ा था हमने कि stable में एक शाम को कौन आ गया था? It was a stray dog. So one late evening a dog strayed into the stable. The next blank is कि राजा lifted the dog with his dash and placed him on his back. ये देखते हैं जब राजा पॉन्ड से वापस आ रहा होता है और डॉग उसके साथ हो रहा होता है तो वो उसको अपनी सूंड से उठा के अपने बैक पे बिठा लेता है. So Raja lifted the dog with his trunk and placed him on his back. And the last blank is that the dog, though weak, sprang to his dash. तो ये भी हमने पढ़ा है कि जैसे ही फार्मर उसे खोलता है कि जाओ अपने दोस्त के पास तो he, though weak, springs to his feet. तो हम लिखेंगे the dog, though weak, sprang to his feet. And these were the blanks. And now we have a few questions जो कि I'm pretty sure you will be able to do. The first one is why was Raja distressed despite royal comforts? कि राजा डिस्पाइट कि उसे जितना भी कंफर्टेबल एक एटमॉस्फेयर मिल रहा था, खाना भी मिल रहा था, उसका अपना केयर टेकर भी था, फिर भी वो अफसुर्दा और डिस्ट्रेस्ड क्यों था. And that we have studied. It was because राजा का कोई दोस्त नहीं था. Then the second question is how did you know that Raja was very happy to have a friend? तो हमें ये कैसे पता चलता है कि राजा जो है वो एक दोस्त के होने पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है तब जब एक स्ट्रे डॉग जो है वो उसके स्टेबल में पहुंचता है और फिर अगले दिन जैन भी देखता है कि वो कैसे एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं, खेलते हैं. एंड दैट इज़ हाउ वी नो कि राजा वॉज वेरी हैप्पी टू हैव ए फ्रेंड. द थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ डिड जैन कम टू नो दैट राजा वॉज सैड. तो जैन कि हमने स्टोरी देखी कि किस तरह से उसको पता चलता है कि राजा जो है वो इज़ फीलिंग सैड was because राजा ने खाना खाना छोड़ दिया था.
उससे जैन जो था वो थोड़ा परेशान हुआ कि इसने क्यों खाना छोड़ दिया। उससे पहले लगा कि इंडाइजेशन का केस है, लेकिन बाद में इट केम आउट टू बी कि राजा वाज एक्चुअली मिसिंग हिज फ्रेंड। देन नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड? जब फार्मर ने बंटी की रस्सी खोल दी थी तो व्हाई डू यू थिंक कि उसने क्यों उसका हाथ चाटा होगा? दैट इज़ बिकॉज उसने उसको थैंक किया था। दिस इज़ वे इन विच द डॉग्स थैंक। And then the last question is कि what was unlikely about the friendship between राजा and बंटी? राजा और बंटी की दोस्ती में क्या unlikely था, क्या different था, क्या ऐसा था कि जो कि थोड़ा सा different था from the common kind of friendships जो कि हमें इर्द गिर्द नज़र आती हैं? That was कि राजा was an elephant whereas बंटी was a dog. They did not have much in common, but the one thing that was common वो ये था कि दोनों खुश थे एक दूसरे की प्रेजेंस से, एक दूसरे की कंपेनियनशिप से, और एक दूसरे के होने से जो है वो उनको खुशी महसूस होती थी। That was different about their friendship कि वो ना बात कर सकते थे ना चीज़ें और कुछ, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे के होने से खुश थे। Now we have some words, और वो words हमने न्यू सीखे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और उसके सारे वर्ड्स के आगे मीनिंग्स प्रोवाइडेड हैं। वाई? सो दैट वी कैन वन डे बी एबल टू इंडिपेंडेंटली यूज देम इन आवर ओन सेंटेंसेस। तो आइए सीखते हैं ये कुछ न्यू वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज़ बूथ। बूथ मतलब अ स्मॉल एनक्लोज्ड प्लेस, ऐसी जगह जो कि छोटी हो, बंद हो, उसको बूथ कहा जाता है। मे बी आपने वोटिंग बूथ का सुना हो। द नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टेबल, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट। ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों को रखा जाए उसको स्टेबल कहते हैं। Then the next word is caretaker, a person who looks after someone or something। ऐसा बंदा जो कि किसी का ध्यान रखे या किसी चीज़ का ध्यान रखे, तो उसको उस चीज़ का या उस बंदे का या उस जो भी जानदार हो उसका केयर टेकर कहा जाता है। Then we have strayed। strayed का मतलब wandered away। ऐसा कोई भी इंसान या जानवर या इंसान और जानवर जो कि कहीं दूर चले जाएं, wander कर जाएं दूर, तो that is directionless too। That is what is called being strayed। Then the next word is accompanied। accompanied मतलब went along with, किसी के साथ जाना, किसी के कंपनी में रहना, उसको accompanied कहते हैं। Then we have munching। munching का मतलब chewing। हम जो chew करते हैं, चबाते हैं, उसके लिए एक बेहतर एडवांस्ड वर्ड मंचिंग आता है। देन वी हैव क्रम्स। क्रम्स क्या होते हैं? स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, खाने के छोटे छोटे टुकड़े। अगर रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो उसको हम क्रम्स कहेंगे। ब्रेड क्रम्स में भी आपने सुना हो। एंड देन वी हैव स्प्लैश्ड। स्प्लैश्ड का मतलब होता है थ्रू, फेंकना। फेंकने का, अगर पानी फेंक रहे हैं तो हम उसको स्प्लैश्ड कह सकते हैं। देन वी हैव येल्प्ड। येल्प्ड का मतलब होता है क्राइड। रोने का दूसरा वर्ड जो है वो येल्प्ड है, एंड दैट इज मोस्टली यूज्ड फॉर एनिमल्स। एंड देन वी हैव विंस्ड। विंस्ड का मतलब होता है शोड पेन और सैडनेस। दुख या दर्द का जो एक फीलिंग है उसको शो करना, उसके लिए एक लफ्ज़ जो है वो यूज़ होता है, दैट इज़ टू विंस। And now we move on to read and respond। यहाँ पे we will be exploring a newspaper or the internet and read a formal letter, जो कि हमने last time किया था। formal letter को समझा था, जाना था क्या है, कैसे लिखते हैं, structure क्या है, etc etc। और what we are going to do today is we are going to explore the same in a newspaper or the internet and identify and label the parts of the formal letter, then answer the following questions। जब आप पार्ट्स उसके लेबल कर लेंगे और आइडेंटिफाई कर लेंगे जैसे कि लास्ट टाइम हमने सीखा था, तो फिर उसके बाद देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो कि हमने आंसर करने हैं। व्हाट आर दोस? नंबर 1, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लेटर? उस खत का बेसिक मकसद क्या है? नंबर 2, व्हाट सोल्यूशन इज सजेस्टेड फॉर द प्रॉब्लम मेंशन्ड इन द लेटर? और उस खत में जो भी मसला जो है मेंशन किया गया उसके लिए सजेस्टेड सोल्यूशन, उसका सजेस्टेड हल क्या है? Then the third is what is the writer trying to accomplish? Give reasons for your answer। और फिर जिसने वो ख़त लिखा होगा आपको क्या लगता है कि वो क्या चाह रहा है उस ख़त के थ्रू, और वो सोचने का कि आपको ऐसा क्यों लगता है उसके लिए अपनी रीज़न भी जो है वो आपने लिखनी है। And once done with that we will be moving on with the vocabulary part। आज हम जानेंगे, सीखेंगे कि डिक्शनरी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, लेकिन उससे पहले डिक्शनरी होती क्या है? अ डिक्शनरी इज़ अ यूज़फुल बुक दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड वर्ड्स। तो वर्ड्स की समझ
जो है वो पहचानना, समझना उनको कि ये हैं क्या, क्यों हैं, किस लिए हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, प्रोनाउंस कैसे किए जाते हैं, ये सब चीज़ें जो है इसमें मदद हमारी डिक्शनरी देती है। ईच वर्ड इन अ डिक्शनरी इज़ एक्सप्लेन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स। एक जो कोई भी वर्ड हो तो वो डिक्शनरी में डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, और वो पार्ट्स क्या हैं आगे हम देखते हैं। दीज पार्ट्स गिव अस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ड। उस पर्टिकुलर लफ्ज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो भी इर्द गिर्द के एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन है, जो कि उस वर्ड के इस्तेमाल को किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है उसमें हमारी मदद देती है। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट पार्ट्स में हमारे लिए प्रोवाइडेड होती है इन अ डिक्शनरी। लेट्स सी parts of a dictionary. The first one is the entry word. Entry word क्या होता है? The entry word is the main word that appears in the dictionary. It provides information about a word or phrase. जो word हम dictionary में ढूंढते हैं उसको हम entry word कहते हैं. And then it is followed with the definition. This is the second part. The definition explains the meaning of the entry word. If a word has more than one meaning, the meanings are listed separately, usually with numbers. Example sentences are sometimes given to help explain the meaning clearly. तो definition में ये होता है कि उस entry word का मतलब जो है वो बयान किया जाता है, और हो सकता है कि उस लफ्ज़ का, उस वर्ड का जो है वो एक से ज़्यादा मतलब हो। और ये हमने देखा था कि होमोफोन्स में या होमोग्राफ्स में हमने देखा था कि एक ही वर्ड हो सकता है लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई भी एंट्री वर्ड ऐसा है जो कि एक होमोग्राफ है और उसके एक से ज़्यादा मतलब या माने हैं, तो उनको अलग-अलग सेपरेटली लिस्ट किया जाता है, यूजुअली नंबर्स देके। और साथ ही साथ हर मीनिंग के अकॉर्डिंगली एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी ऐड किया जाता है, ताकि हमें ये पता चल सके कि उस मीनिंग के अकॉर्डिंगली उसको कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। The third part is the guide words. Guide words are printed at the top of the dictionary pages. They show the first and the last words on that page and help you find words quickly. बिल्कुल टॉप हेडर में जो है डिक्शनरी के, वहाँ पे जहाँ पे पेज नंबर वगैरह ऐड होता है वहाँ पे गाइड वर्ड्स भी दिए जाते हैं, जिसमें एक साइड पे जो है वो आपका फर्स्ट एंट्री वर्ड दिया जाता है और दूसरी साइड पे आपका लास्ट एंट्री वर्ड जो है वो प्रोवाइडेड होता है, ताकि ये आइडिया हो सके कि एक जो स्टार्टिंग वर्ड है और जो एंडिंग वर्ड है उसके दरमियान में हमें कौन कौन सा वर्ड मिल सकता है, या कहाँ से लेके कौन से वर्ड जो हैं वो उस पेज पे हमें मिल जाएंगे। एंड देन वी हैव द अनदर part which is pronunciation. The pronunciation section shows how a word is spoken. Words are broken into syllables and the stressed syllable is usually marked to help with correct pronunciation. तो उसके फिर नीचे हर word के नीचे pronunciation भी मिलती है आपको, जिसमें आपको उस लफ्ज़ को बोलना जो है सीखने में मदद वो पार्ट हमें देता है। उस वर्ड को उसके डिफरेंट सिलेबल्स में तोड़ा जाता है। सिलेबल का अपना साउंड होता है, एक सिलेबल का एक साउंड होता है, और जिस सिलेबल को स्ट्रेस किया जाता है वो बेसिकली उससे हमें उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का पता चलता है कि स्ट्रेस कौन से पार्ट पे देना है। एंड देन वी हैव पार्ट ऑफ स्पीच। दिस पार्ट टेल्स अस हाउ अ वर्ड इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस, कि वो पर्टिकुलर जो लफ्ज़ है वो सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे होगा। एज अ नाउन इस्तेमाल होगा, एज अ वर्ब होगा, as an adjective, as a pronoun, a preposition और as a conjunction, जो कि हमने पहले भी पढ़े हैं। तो वो इनमें से कौन सा वाला पार्ट ऑफ स्पीच है, और इस वजह से हम ये भी देखेंगे कि उसकी सेंटेंस में सीक्वेंशियल जो पोजिशनिंग है वो कहाँ पे आती है। Next we have another part, that is the origin. The origin tells us where the word comes from or which language it was taken from. जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो most of the words जो कि इंग्लिश डिक्शनरी में हैं या जो इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, they are basically driven from Latin. इस तरह से बहुत से वर्ड्स डिफरेंट लैंग्वेजेस से जो हैं वो आते हैं। अगर हम उर्दू की भी बात करें तो उसको लश्करी ज़ुबान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि डिफरेंट ढेर सारी लैंग्वेजेस से जो है वो वर्ड्स लेके उर्दू में शामिल किए गए। तो कोई भी वर्ड वो एक्चुअली में ओरिजिनेट कौन सी ज़ुबान में हुआ था वो यहाँ पे हमें ओरिजिन के अंडर बताया जाता है। Then the last part is pronunciation guide. Pronunciation guide में क्या है? It explains the symbols used to show how words are pronounced. It is usually found at the beginning of a dictionary and sometimes at the bottom of pages. It may also be shown in a colored box.
तो ये प्रोनाउंसिएशन गाइड जो होती है, ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि हमें हेल्प कर रहे होते हैं जानने में कि कौन सा पर्टिकुलर जो सिंबल है वो किस साउंड की बात कर रहा है, और उसके थ्रू जो है वो हम जान पाते हैं कि एक्चुअल में पूरा का पूरा वर्ड ऑल द लेटर्स टुगेदर क्या साउंड बनाएंगे या क्या उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। और ये पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन गाइड शुरू में भी दी जाती है, डिक्शनरी के बिल्कुल शुरू में, या फिर पेजेस के बॉटम में भी आपको प्रोवाइडेड होती है, और हो सकता है कि कहीं पे आपको एक कलर्ड बॉक्स में भी मिल जाए। Now we have a particular picture down below और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि locate the different parts of a dictionary and notice their meaning। तो ये एक एंट्री वर्ड है यहाँ पे, और उसको सारे के सारे जो डिक्शनरी के पार्ट्स हैं वो सारे के साथ इसके साथ साथ हमें लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइड वर्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं, विविड है और वॉइस है। तो इसका मतलब विविड और वॉइस के बीच में जितने भी वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में आते होंगे वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर पेज पे मिल जाएंगे। और फिर हमारे पास एंट्री वर्ड लिखा हुआ है वोकैबुलरी, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी नीचे दिए है, सिम्बल्स हैं, सिलेबल्स में ब्रोकन डाउन है, और वो सिलेबल्स जो हैं वो आपको नीचे सबसे नीचे प्रोनाउंसिएशन गाइड में मिल रहे हैं कि अगर VEU जैसा एक साइन दिख रहा है तो उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। Below that we have the portion जहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे बताया गया है कि इस एंट्री वर्ड को कैसे इस्तेमाल करना है। तो वोकैबुलरी इज़ अ नाउन, तो इसको नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा आइदर एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। फिर हमारे पास आती है डेफिनेशन, द बॉडी ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज और इन अ पर्टिकुलर स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, द वर्ड्स नोन टू अ पर्सन और अदर एंटिटी, अ लिस्ट ऑफ डिफिकल्ट और अनफेमिलियर वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। तो ये सारी की सारी इसकी डेफिनेशन है जिसमें वो बता रहा है कि कोई भी बॉडी ऑफ वर्ड्स जो कि किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में इस्तेमाल होती है, किसी स्फीयर ऑफ एक्टिविटी में इस्तेमाल होती है, या फिर कोई भी बंदा जो है उसके इल्म में हो वो चीज़, तो उसने किस तरह से जो है वो किसी चीज़ का नाम बुलाना है या कैसे अपना जो मैसेज है वो कन्वे करना है, तो उसके लिए वो जो भी अल्फाज इस्तेमाल करेगा उस सब को मिल मिला के हम क्या कहते हैं, वोकैबुलरी। नीचे वी हैव दी the set example sentence जिसमें लिखा हुआ है कि she has an extensive vocabulary for her age, अपनी उम्र के लिहाज से उसके पास जो vocabulary है वो ज़्यादा अच्छी है। See, so this is how that is। और फिर नीचे हम देख रहे हैं कि origin भी provided है, and as said before English में बहुत सारे words जो हैं majority words Latin से उठाए गए हैं, वही यहाँ पे भी है कि this is taken from medieval Latin vocabularium, असल में ये वर्ड था, और इंग्लिश में जब इसको किया तो वोकैबुलरी कर दिया गया, एंड लैटिन में वोकैब्युल जो है उसका मतलब होता है नेम, राइट। और फिर एज सेड बिफोर हमने प्रोनाउंसिएशन गाइड को पहले ही डिस्कस कर लिया था। देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस जो कि इसको फॉलो कर रहे हैं, और वो क्वेश्चंस में जो है वो डिक्शनरी के पार्ट से ही रिलेटेड हमसे कुछ इंक्वायर किया जा रहा है। लेट्स सी व्हाट दैट इज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज काउंट द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन द वर्ड इंटरेस्टिंग। ऊपर हमारे पास सारे के सारे सिलेबल्स प्रोवाइडेड हैं, और हम इंटरेस्टिंग के अंदर जो है वो इसमें से सिलेबल्स को कर लेंगे। इंटरेस्टिंग 3 सिलेबल्स बनते हैं। बी में यूजिंग अ डिक्शनरी आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड केयरफुली। तो अब आप डिक्शनरी को खोलेंगे, एंड वंस यू आर डन विद दैट यू विल फाइंड कि एंट्री वर्ड केयरफुली हमें कौन से पेज पे मिलता है। फिर उस पेज पे जाके हम उस केयरफुली की जो भी एंट्री है उसके नीचे देखेंगे कि जहाँ पे लिखा होगा कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, हमें प्रोनाउंसिएशन से नीचे जो है वो लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज लुक अप द वर्ड ऑनेस्ट एंड राइट इट्स लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन। फिर हमने क्या करना है कि ऑनेस्ट को देखना है डिक्शनरी में, और ये देखना है कि ओरिजिनल जो लैंग्वेज थी जहाँ से इस वर्ड को निकाला गया है वो लैंग्वेज कौन सी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा, हमने MCQs भी कर लिए, वी वर सक्सेसफुल कि हमने अपने ब्लैंक्स भी कंप्लीट कर लिए। हम लोगों ने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में खुद से अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करना भी सीख लिया, और मोर ओवर वोकैबुलरी के अंदर डिक्शनरी को किस तरह से हम देखते हैं, डिक्शनरी को किस तरह से पढ़ना है, उसको समझना है, और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स का क्या सिग्निफिकेंस है और उसका क्या पार्ट है कि हम जो है वो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन से लेके वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग से लेके उनकी डिफरेंट कॉनोटेशंस को किस तरह से समझते हैं, वो सब हमने देखा। एंड आई होप कि इससे आपको प्रॉम्प्ट मिला होगा कि आप जो है वो डिक्शनरी खोलें और उसमें और चीज़ें जो है वो पढ़ें और खुद से एक्सप्लोर करें वट एवर दैट यू कैन लर्न न्यू अबाउट इट। एंड नाउ वी आर गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन लुकिंग इनटू द डिक्शनरी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।